Welcome back, children. We will be discussing the lesson 13. मैं सबसे छोटी हूँ. First meaning, अंचल वस्त्र का किनारा means the border of the dress. माता माता माँ mother. सदा हमेशा always. फिरती घूमती means roaming. गाद शरीर means body. थमा देकर means giving. स्नेह प्यार means love. निष्प्रस इच्छा रहित without any wish. निर्भय निडर with fearless. Now पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास. We can explain the question answers from the poem. कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? In poem, why the child want to become always small? Answer, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे लंबे समय तक. In this poem, the child want to become always small. Why? Because a long time the child want to माँ का प्यार मिलते रहे. The mother's love should get. माँ के आंचल की छाया मिलती रहे. The mother's shade should get. माँ के साथ मिलता रहे. And mingling with mom. विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे. Different type of toys should get. माँ के द्वारा परियों की कहानी सुनने को मिले. And the mothers always tell so many fairy tale stories that she don't like to lose it. That's why she always want to become small. Now see the second question. कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगी? In this poem, why the child don't want to become big? And you also like to become small? इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है. This poem, the child want to always with her mother and she likes to always with her mother. वो ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती. She don't like to become grow जिससे वो माँ का प्यार दुलार न पा सके. She cannot lose her mother's pampering and all. बड़ी बनकर वो माँ के प्यार खोना नहीं चाहती. If she become grow, she will lose her mother's love. इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हो वो मैं की कामना की गई है. That's why the child wish to not to become big. हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करूँगी. Even me also, I would like to become always small because I don't like to lose my mother's love. Now, let's question number 3. आशय स्पष्ट करो. You should explain these 2 lines. हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, हाथ नहीं फिरती दिन रात. What is the meaning of this? इस कविता का आशय यह कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है. In this poem's lines explanation is that the child always want to become the small child क्योंकि बड़े हो जाने पर उसके साथ माँ से छूट जाता है. And mothers nearby is leaving when she become big. जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची को साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी. And when she was small, always mother was nearby her and she was loving her. अब नहीं करती, वैसा अब नहीं करती. Now when she grow, it's not getting. इसलिए वो हमेशा माँ का साथ चाहती है. That's why she like to nearby always her mother. Now question number 4. अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं. When they are small, always mother is with them. इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? Each all conditions set when the child is getting the help and always the mothers nearby. माँ की गोदी में सोना. To sleeping her mother's lap. परियों की कहानी सुनना. Hearing the story of fairy tales. उसकी आंचल पकड़कर चलना. And always holding the mother's dress and walking. उनके हाथों में खाना तथा उसके हाथों से सजना संवारना. And mothers will feed and she will decorate her always, etc. आदि. इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई है. The mothers nearby. You can see this all situations.
नाउ कम भाषा की बात मीन्स द ग्रामर साइड. नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है. यू हैव टू say the difference between these words. You can see the words when you read that words you will get a similarity, but little when for using it different situation. स्नेह छोटे के लिए प्रेम. माँ अपने बच्चे को से स्नेह करती है. ऑलवेज मदर विल लव हर चाइल्ड. प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए, दैट इज स्मॉलर एंड एल्डर्स ऑल्सो. राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है. यू नो राम लक्ष्मण's लव इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके. शांति हलचल न होना, देर इज नो साउंड. नेहा घर में आज इतनी शांति क्यों है. वाई देर इज वेरी साइलेंट टुडे एट होम. देन सन्नाटा वातावरण में चुप्पी होना. രാത് के वक्त गाँव में सन्नाटा छा जाता है. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാവില്ല. സന്നാട്ട മീൻസ് ദർ ഇസ് എ കാംനെസ്. യു ക്യാൻ. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനസ്സിന് ഇത്തിരി ശാന്തി കിട്ടുന്നതും മറ്റേത് ശബ്ദമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും. नेक्स्ट इज धूल मिट्टी मीन्स सैंड. चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है. धूल मीन्स डस्ट लाइक एंड द पोल्यूशन इज स्प्रेडिंग. नाउ राख लकड़ी या कोयले जलने के बाद बचा पदार्थ. आफ्टर बर्निंग द logs and coals you will get चार बोले. ओके दैट इज कॉल्ड राख. राख कोयले से बनती है. द राख इज आफ्टर कोयला बर्निंग ओनली वी आर गेटिंग. ग्रह नक्षत्र. वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में 8 ग्रह बताए हैं. यू नो सोलर सिस्टम देयर इज 8 प्लैनेट्स आते हैं. ग्रह मीन्स प्लैनेट. ग्रह हाउस. ओजस्व को ग्रह कार्य नहीं मिला. ओजस डिडंट गेट एनी होमवर्क. नाउ नेक्स्ट इज निधन डेथ मृत्यु. सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई. व्हेन सेठ जी डाइड एवरीबडी वाज मॉर्निंग फॉर हिम. निर्धन पुआ गरीब. हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी है. वी आवर कंट्री देयर इज सो मेनी पुअर पीपल. समान बराबर इक्वल. हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है. इन आवर कंट्री ऑल आर हैविंग द इक्वल राइट्स. सामान वस्तु थिंग. घर में सामान बिखरा पड़ा है एंड इन आवर हाउस इट इज स्प्रेडेड एंड केप्ट द थिंग्स. नाउ कविता में दिन रात शब्द आया है. यू कैन सी द दिन रात. मैं माँ का साथ फिरूँ. അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ दिन रात എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റാത്ത് അല്ലേ. तुम भी ऐसे 5 शब्दों को सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनके वाक्य बनाओ. यू हैव टू मेक ए सेंटेंस विद द opposites word. This is also shabda yugmana, but when you use it, it is coming opposites. So you can write any 4 and you can write a sentence also, but it should be opposites. मित्र ऑपोजिट शत्रु. मित्र मीन्स फ्रेंड, शत्रु मीन्स एनिमी. आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है. Nowadays we cannot identify who is friend and who is enemy. उल्टा सीधा मीन्स उल्टा मीन्स ऑपोजिट, सीधा मीन्स स्ट्रेट. तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकत शोभा नहीं देता. डूइंग इट्स अनवांटेड थिंग्स मीन्स उल्टी सीधी मीन्स नॉट इन प्रॉपर वे. इट इज़ नॉट गुड. अच्छा बुरा गुड एंड बैड. संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है. वी शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड एंड बैड इन दिस वर्ल्ड. सुख दुख. सुख दुख यू नो. सुख मीन्स हैप्पी, दुख मीन्स सैड, सोरोस. सुख दुख जीवन की सच्चाई है एंड सुख दुख इज द लाइफ्स ट्रूथ. एंड दिस मच ओनली इन दिस लेसन्स notes. And you can copy the notes in your notebook and study well and take care. We will meet in a Google Meet. Then any doubts you can clear in the meet. You hear the videos and write the notes. I am sending the notes also. Okay children, take care. Bye bye.